Hello everyone, welcome back to 1PYQ a day series. Today we are going to discuss internal security question which appeared in year 2025, a recently concluded exam. Before starting with the question, you can avail one-to-one free mentorship by clicking on the link given in the description. So here is the question. Question reads, terrorism is a global scourge. How has it manifested in India? Elaborate with contemporary examples. What are the countermeasures adopted by the state? Explain. क्वेश्चन देखेंगे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इवन द टॉपिक टेररिज्म फ्रॉम द इंटरनल सिक्योरिटी, राइट, 2025 GS3 है ना. कॉमन टॉपिक, क्वेश्चंस आर रिपीटेडली coming from this particular aspects, and just 10 marker 150 words. Question is not tough, everyone knows about the terrorism. They just gave up initial statement that terrorism is a global scourge, and then they asked how it manifested. भारत में किस रूप में प्रकट हुआ है. So when you talk about an introduction for this terrorist, देखो, if you wanted to define, है ना, define terrorism, this can work. A use of violence against the civilians to fulfill their ideologies, religious, maybe political, लिख सकते हैं. Maybe you can talk about how frequently there is a terrorist attack on the Indian soil, or maybe you can simply mention recently India redefined its terrorism policy, right? So policy against terrorism has been redefined by the India, and they mentioned any attack, right, on the soil of India will be considered as an act of terrorism, है ना. Attack on the soil India, what this is act of terrorism. So there are multiple ways. Any one way will be sufficient. Even if you wanted to give a reference of पहलगाम अटैक रिसेंटली, वो हुआ है तो सबको ये पता है ना, ऑपरेशन सिंदूर. देना चाहते हैं दे सकते हैं, नो वरीज. देन द बॉडी पार्ट. नाउ व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन, लुक, द क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. हाउ, है ना, हियर एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, सो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट. अगेन व्हाट, question mark, direct question. What they just mentioned additionally here, elaborate with contemporary examples. So yes, examples are asked specifically. नहीं भी पूछे होते तो generally it's a norm that after argument we do provide a example, but specifically पूछा गया है तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, right? And then in this particular second part, explain बोला है मेजर्स को, राइट. ज़्यादा कुछ है नहीं. सो हाउ हैज़ इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया विद द एग्जाम्पल. सो लुक एट दिस. फर्स्ट हेडिंग, मैनिफेस्टेड इन इंडिया एज अ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. सबको पता है पहलगाम अटैक, रिसेंट इंसिडेंट्स. क्वेश्चन भी आ गया. यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल. यू हैव टू सिंपली एलैबोरेट. यस, due to a long border with the other countries, उसको हम क्या बोलते हैं, a long international border along with the difficult terrain gives a blooming space for the cross border terrorism. एग्जाम्पल में लिख देंगे पहलगाम अटैक. आपको अगर elaborate बोला है तो you have to write a little bit with no addition of the ideas. छोटा नहीं लिखेंगे, it's not a state or maybe highlight. Elaborate with contemporary example. देन नार्को टेररिज्म. इसमें यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ भी चुकी है अबाउट द नार्को टेररिज्म, राइट. इसका एग्जांपल काफ़ी सिंपल है, पंजाब बॉर्डर. वैसे लिखने के लिए आप तो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं. वी ऑल नो दैट गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट, दैट इज द कंसेप्ट्स. एंड वेन एवर देर आर सच एरियाज एंड द नियर बाय border states of the India, they generally face a problem of the drugs, right? So narcoterrorism, what does it mean? A money, है ना, which you earn through this illegal thing, drug trafficking, peddlings, that has been infused
फॉर द एक्ट ऑफ टेररिज्म, एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन साइबर टेररिज्म, अगर अब बात की जाए साइबर टेररिज्म की, है ना, तो देखो नाम क्या है, इट्स सिंपली यूज ऑफ समथिंग साइबर टेक्निक्स टेररिज्म। अगर आपको पता होगा इन 2008 मुंबई अटैक व्हाट बेसिकली वी डिड है वोल्ट टेक्निक, कम्युनिकेशन टेक्निक्स थी। ऑफ कोर्स साइबर मीन्स अ डिजिटल स्पेस। बिसाइड्स दैट यू कैन ऑल्सो हैव what we call brainwashing in digital space, or maybe very specifically if you know about some Trojan or maybe a spyware which is used to extract the information, right? Pegasus, Stuxnet एग्जाम्पल है, बट नहीं पता तो जो पता होगा वो लिखेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। तो साइबर टेररिज्म। देन अर्बन टेररिज्म, देखिए वैसे तो 10 मार्कर क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स, ज़्यादा लिखना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम तो डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो इफ़ यू नो दिस पॉइंट्स राइट, बिकॉज आई हैव मेंशन्ड 3 हियर एंड 3 हियर, 6 पॉइंट्स नॉट रिक्वायर्ड। इतने सारे कैसे लिख पाएंगे बताइए 10 मार्कर 150 वर्ड्स के लिए। सो अर्बन टेररिज्म, सिंपली नेम सजेस्ट अर्बन, तो अर्बन एरियाज में अटैक होता है, द एक्ट ऑफ वायलेंस बेसिकली। सो आपके पास एग्जाम्पल है बेंगलोर कैफे बॉम्बिंग 2024 में हुआ था, ठीक है ना, तो यू कैन मेंशन इट। हिंटरलैंड टेररिज्म क्या होता है, जनरली मेनलैंड नहीं होता, दिस इज फार फ्रॉम इट। ऐसे भी काफ़ी अटैक है जो छोटी जगह पे होते हैं। अगर देखा जाए तो पहलगाम इज़ नॉट एन अर्बन एक्ट, टूरिस्ट स्पॉट है, छोटा स्पॉट है, राइट, बट ओनली इट्स क्लोज टू दी दैट बॉर्डर एरियाज अटैक हैपेंड। सो हिंटरलैंड ये जो है फार फ्लंग एरियाज में होते हैं। Then other, why others basically? Look, if you argue in that way, left-wing extremism or be northeast insurgency, this can also be included in the act of terrorism. Ministry of Home Affairs की अगर आप वेबसाइट देखेंगे, they have mentioned few organization which are categorized as a terrorist organization. तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, और इवन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज में कुछ ऑर्गेनाइजेशन से उनके भी नाम है। So what does it indicate? Though we have a special terminologies used for this left-wing extremism and northeast insurgencies, but if you wanted to mention, you can. उसमें कोई भी हर्ज नहीं है, right? So this is the first part, how it manifested. इस फॉर्म में मैनिफेस्ट हुआ है ये। Then काउंटर मेजर्स अडॉप्टेड बाय स्टेट, इसको एक्सप्लेन करना है, पहले वाले को एलेबोरेट करना था, है ना, समझाना है। अब बेसिकली देखिए होता क्या है, रिफॉर्म्स और मे बी मेजर्स विच यू अडॉप्ट, दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू इंस्टीट्यूशनल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, वैसे भी कर सकते हैं, इफ नॉट वी कैन राइट डायरेक्टली। सो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ कोर्स आफ्टर 2008 अटैक, तो एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म था, वी क्रिएटेड अ न्यू इंस्टीट्यूशन, है ना, एक इंस्टीट्यूशन बना दिया इन द नेम ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हम यही समझा रहे हैं इसमें, एक्सप्लेन करना है क्यों, दे कैन इन्वेस्टिगेट द केसेस, जो भी एक्ट ऑफ टेररिज्म है दे कैन इन्वेस्टिगेट। देन टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, आपने एक डेटा बना लिया, अ सुपर सेट ऑफ द डेटा वेयर यू हैव a data keeping or maybe records of all the incidents, useful information which is helpful to track the criminals or maybe terrorist, right? Prevention of Money Laundering Act 2009 में अमेंडमेंट किया था हमने, ठीक है। सेम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, रिसेंट अमेंडमेंट 2012। हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या कर लिया, नो दैट इज नॉट द क्वेश्चंस। मेजर्स अडॉप्टेड, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स यहाँ पे आपने देख लिया, है ना, ये एक टेक्नोलॉजिकल है, ये हमने लीगल भी कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए हैं बाय अमेंडिंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी अनलॉफुल एक्टिविटीज, है ना, ये दो नाम हो गए यहाँ पे। नाउ फर्दर
फॉर द राइटिंग पर्पस, वी हैव मोर. देखिए कुछ मेजर्स जो होते काउंटर मेजर्स अडॉप्टेड बाय द स्टेट, कुछ होते इमीडिएट मेजर्स, है ना. वैसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे मान लीजिए स्ट्रेंथनिंग द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, प्रोवाइडिंग देम एडवांस टूल्स, गन्स, है ना. देन कोस्टल बॉर्डर सिक्योरिटी एनहांस्ड और मे बी स्ट्रेंथन, यस. बॉर्डर फेंसिंग कैसे, विद द हेल्प ऑफ AI, मे बी फेस डिटेक्शन, थर्मल कैमराज, है ना. जहाँ पे डिफिकल्ट टेरेन है, वेयर यू कैन एक्चुअली कैन नॉट हैव अ फेंस, यू कैन हैव अ डिजिटल फेंस. अब डिजिटल फेंस क्या हुआ, दिखेगा तो नहीं, है ना. कैन आई सी द इंटरनेट, इट्स नॉट समथिंग टेंजिबल. इंटरनेट को ऐसे पकड़ नहीं सकते ना, जैसे कि हाथ में अगर पेन पकड़ के रखा है आपने. सो द थिंग इज दैट enhance security through digital fencing, so many other means, right. Even you can talk about training them, right, to tackle the emerging threats. ठीक है, it's a part of it. Then international cooperation, of course, हमने इंडिया की बात की, स्पेशली फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंटिंग और मे बी थ्वार्टिंग द टेररिस्ट एक्टिविटीज़, है ना. हमने सिटीजन्स के पॉइंट से अभी फिलहाल तो बात नहीं की है. इंडियन मेजर्स जहाँ पे हमें उनको टैकल करना है बिकॉज दे आर द मिसक्रिएंट और मे बी रॉन्ग डूअर्स. नाउ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, नाम कुछ भी लिख सकते हैं ना. यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल्स अगर कोई रिजोल्यूशन को अडॉप्ट करती है अगेंस्ट टेररिज्म, राइट दोस्त. इफ नॉट, रिसेंटली SCO चल रहा था न्यूज़पेपर में. SCO का राइट्स है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, शंघाई कोऑपरेशन के अंदर. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, है ना. मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म को प्रिवेंट करते हैं. सो वी हैव द वेज. ऐसे भी ये जो हमने वेज निकाले थे दैट इज गिवन इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिप्लाईज, ठीक है ना. these are the few aspects. Development measures, border area development program, yes. We have talked about the measures from the perspective of preventing something, that is देखो टेररिज्म की एक्ट है वहाँ पे. प्रीवियसली UPSC आस्क्ड क्वेश्चन ऑन ओवर ग्राउंड वर्कर्स. टेररिस्ट इन्वॉल्व तो है बट एट अ टाइम फ्यू सिटीजन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, मे बी ड्यू टू रिसेंटमेंट टूवर्ड्स द गवर्नमेंट कि यार देखो ये नहीं हो रहा, जॉब्स नहीं है, देयर इज़ नो एजुकेशन, नो स्किल्स, no opportunities to survive, to out of frustration, poverty, one may join or maybe get brainwashed. ऐसिस करता है ना. डिजिटल में क्या कर लेते हैं वो, few youths in past flew from Kerala to that ISIS zones to join them, है ना. हमें पता है ये बातें, तो ऐसे भी हो जाता है. सो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब इसमें क्या होगा, इट कैन बी एनीथिंग, हेल्थ, एजुकेशन, रोड, इलेक्ट्रिसिटी. पॉइंट बस ये है बताने का कि यस दीज आर द मेजर्स विच यू हैव अडॉप्टेड. क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा है ये नहीं पूछा है कि व्हाट कैन बी डन ऑलरेडी अडॉप्टेड. हियर इज द क्वेश्चन, यू कैन अगेन चेक. ये सब छोटी छोटी चीज़ें, यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली. अडॉप्टेड, ऑलरेडी अडॉप्टेड. देयर इज नो सच क्वेश्चन कि व्हाट आर द काउंटर्स मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड. Can be and already adopted, there is a difference. So keep in mind these differences to satisfy the core demand in a very exact manner, right. तो कहाँ थे हम, yes, here development measures. Again 10 marker questions, you cannot actually write 6 points for both the aspects, but 3 points are sufficient. Don't go by that myth 10 मार्क का क्वेश्चन है 10 पॉइंट लिख देने थे, नहीं. द क्वेश्चन विल टेल यू ना इफ इट इज़ रियली पॉसिबल और नॉट. जस्ट डोंट गो विद द नॉर्म्स कि ऐसा करना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना. सो देन अल्टीमेटली कंक्लूजन के भी बहुत सारे तरीके हैं. आइदर यू कैन टॉक अबाउट सिटीजन पार्टिसिपेशन इन प्रिवेंटिंग द टेररिज्म एक्टिविटीज एज why as, because they are the one who are well acquainted with the topography of region and also the problems they are facing, है ना. अगर हमने बोल दिया कि
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज में टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही है, तो साल्वाजुदोम न्यूज़पेपर में था. सो आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आपको वो यूज़ कर ही ना है, बस मैं बता रहा हूँ कि दैट मे बी द वन वे. अनदर सिंपल वे, द नीड इज टू स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट मेजर्स फर्दर टू इनहांस देयर इफेक्टिवनेस टू curtail द टेररिस्ट एक्टिविटीज़. ठीक है, वो भी ठीक है. अब देखिए मेजर्स अडॉप्टेड हो चुका है, मैंने कुछ लिख रखा है, रेगुलेट और मे बी मॉनिटर डिजिटल स्पेस एंड फाइनेंशियल नेटवर्क. वाई? देखो, विदाउट मनी, दैट्स व्हाई देयर इज अ कॉन्वर्जेंस, है ना. जैसे हम नहीं बोलते नार्को टेररिज्म, राइट. ये नार्को क्या है? बेसिकली पैसे कमाने का रास्ता है फॉर देम. So narco terrorism, financial activities, and of course how they are selling or connecting with someone in the digital space, technology, communications, right? So like, जो पहले दो तरीके बताए, that is also fine, but this is also a way where you can mention, along with the other adopted measures, the need is to regulate or monitor the digital space and financial networks to further weaken the terrorist network. अल्टीमेटली सब यहीं से होना है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं. इफ दे कांट कम्युनिकेट, बेसिक रूल्स है ना, किसी को अगर कमजोर करना है तो व्हाट यू डू, कम्युनिकेशन एंड मनी, ये दो चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर दो, थिंग्स विल क्रम्बल डाउन. Right? So that is how you can conclude, or maybe as we discussed previously also, the other ways also will be fine. Okay, so this is all about today's internal security questions. Thank you everyone.